Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing about the topic non-communicable diseases in India. सबसे पहले सब टॉपिक्स को देख लेते हैं क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेफिनेशन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और एनसीडीज इन शॉर्ट। What are the causes for the rising burden of the non communicable diseases in India? What is the impact of non communicable diseases on India? What are the steps taken by the government to tackle the NCDs? What could be the way forward? And we will write a conclusion in the end. सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस दे आर दी मेडिकल कंडीशंस दैट आर नॉट infectious. So they are not infectious means they do not spread from one person to another. They are usually chronic, that means they are long lasting and they are slow progressing in nature, and they often result from a combination of genetic factors, like in case of diabetes, then physiological factors, for example, if there is a metabolic imbalance in the body of a person, or there is hormonal disturbance, some cardiovascular dysfunction, etc. Then environmental factors like air pollution, it can cause lung-related problems, lung diseases, and behavioral factors like habits of drinking alcohol, smoking cigarettes, or consuming tobacco, etc. Then the main types of non-communicable diseases. So according to the World Health Organization, there are four major groups. The first one is called as the cardiovascular disease. इसमें आपका heart attacks, stroke, and hypertension. Hypertension is nothing but high blood pressure, high blood pressure or BP. Then cancer में breast cancer, lung cancer, oral cancer, and third is the chronic obstructive pulmonary disease. इसमें chronic bronchitis and emphysema आता है। तो chronic bronchitis में बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई जो एयर को कैरी करता है टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स, सो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एंड जो एम्फाइसीमा है, इसमें जो लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक, इनको एल्वियोलाई भी बोलते हैं, तो ये डैमेज हो जाते हैं एंड दे आर एक्सपेंडेड, विच रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग टू द पर्सन। And fourth type is diabetes mellitus, which is commonly called as diabetes, and diabetes mellitus in a more, you can say, medical terminology. And then the causes of the rising burden of the non-communicable diseases in India. Uh, First one is the demographic transition, or you can say aging population, because the NCDs, they are more common in the older age groups, and India's elderly population, which is above 60, is also projected to reach 19% by 2050. And for example, you can say that in people among greater than 60 years, there is hypertension and type 2 diabetes are most commonly seen. Second cause is the epidemiological transition. The countries nowadays are shifting from infectious diseases to chronic diseases because of the improved sanitation, vaccination, and antibiotics. So, because of all these factors, the infections are getting reduced, and hence the infectious diseases are getting reduced. थर्ड इज रैपिड अर्बनाइजेशन। तो रैपिड अर्बनाइजेशन से सेडेंटरी लाइफस्टाइल से लोगों का फास्ट फूड कल्चर आ गया है, स्ट्रेस इज आल्सो देयर, एयर पोल्यूशन इज आल्सो देयर। एग्जांपल दे सकते हो कि हाई पोल्यूशन है दिल्ली में, AQI लेवल्स आर इन डेंजरस कैटेगरीज, सो इससे रेस्पिरेटरी डिसीज जो है वो काफी बढ़ रहे हैं। फोर्थ आर दी लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसको हम बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। इसमें आपका अगर टोबैको यूज, जिससे कि लंग कैंसर हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो सकते हैं,
जो स्मोकलेस टोबैको है उससे ओरल कैंसर हो सकता है। ई इसमें है अनहेल्दी डाइट। तो जो हमारा हाई सॉल्ट शुगर या ट्रांसफैट कंजम्पशन है, अ, उसकी वजह से जो फास्ट फूड डाइट्स हैं उसकी वजह से हमारा इंक्रीज्ड ओबेसिटी हो रहा है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी लोगों में जो पैकेज्ड फूड कंजम्पशन है वो भी काफी बढ़ रहा है। फिजिकल inactivity is also another cause. Sedentary jobs हैं mostly in IT and corporate sectors if you will see. And then harmful alcohol use, it is linked to liver disease and hypertension. A fifth factor is ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट फोर्सेस। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि मार्केट जो है इंटरकनेक्टेड हो गई है, और जो है एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के लिए, शुगरी ड्रिंक्स के लिए, टोबैको एक्सेट्रा के लिए। और आप देख रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल फूड चेन्स, फास्ट फूड चेन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, सबवे एंड एक्सेट्रा, सो उनका भी एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। Sixth factor or causes, our preventive healthcare systems are weak, and they are more focused on communicable diseases. So जो नॉर्मली जो हमारे कम्युनिकेबल डिसीजेज है, जैसे कि टीबी हो गया, या फिर कॉलेरा हो गया, डेंगू हो गया, फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। सो फोकस गवर्नमेंट का और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम्स का कम्युनिकेबल डिसीज पे शुरू से ज़्यादा रहा है। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर अगर हम बात करें तो अगेन एयर पॉल्यूशन जैसे है, उससे आपको पल्मनरी डिसीज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज भी जिस तरीके से चेंज हो रहा है, तो उससे हमारे फूड सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, जिससे हमारा पुअर न्यूट्रिशन है, प्लस जो हमारे फूड्स हैं उसमें फर्टिलाइजर्स एंड ऑल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आगे कैंसर्स वगैरह का जो डिसीज है वो बढ़ रहे हैं। देन इम्पैक्ट के बारे में बात करें कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, तो फर्स्ट वन इज इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ग्लोबली भी अगर हम देखें तो जो 74% ऑफ द टोटल डेथ्स होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से होती हैं। डब्ल्यूएचओ के एस्टिमेट्स हैं, आप कोट कर सकते हैं। और इंडिया में भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% से भी ज्यादा है ऑफ द टोटल डेथ्स। सेकेंड जो इसमें इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, डेट इज प्री मैच्योर मोर्टेलिटी में इसका कंट्रीब्यूशन है। जो 30 से लेकर के 70 तक की एजेस है उसमें मोर्टेलिटी एनसीडीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। फिर मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी भी ये कॉज करता है, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इलनेस, डिसेबिलिटी, डिपेंडेंस क्रिएट होती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे अगर किसी को स्ट्रोक आएगा तो पैरालिसिस हो सकता है, डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर या उसको ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो दीज आर अनदर इम्पैक्ट। फोर्थ अगर हम देखें तो इट इज द शिफ्ट फ्रॉम एक्यूट टू क्रोनिक केयर, बिकॉज एनसीडीज जो होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होता करना पड़ता है। और ये भी बताया था कि जैसे पहले कि ये स्लो प्रोग्रेसिंग इन नेचर होते हैं, तो इसमें कॉन्टिन्यूस मेडिकेशन आपको लेना है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग चलता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक तरीके का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है इसमें। फिफ्थ इम्पैक्ट को देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डब्ल्यू है उसका ये कहना है कि इंडिया जो है इट माइट लूज 4.58 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2030 due to non-communicable diseases and mental health conditions. Second thing you can also say is because of long term illness and disabilities, उसकी वजह से जो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस होगा, और हंस हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सिक्स्थ इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। क्रोनिक डिसीजेज हैं तो उसमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट रहेगा, उसकी वजह से मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटलाइजेशन रहेंगे, वो दे आर एक्सपेंसिव, एंड इसकी वजह से the families they will be pushed below the poverty line.
Seventh is impact, you can say, is increased pressure on tertiary hospitals. एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं कि कार्डियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में ओवर क्राउडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो रहे हैं और साथ ही साथ कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑन्कोलॉजी सर्विसेज में भी काफ़ी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट, what are the steps that has been taken by the government to tackle the non-communicable diseases? So steps में देखें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक, इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक। इसको 2010 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उसमें हम प्रिवेंशन करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे। जो मेजर इसमें से मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को इंक्लूड किया गया। इसमें जो की कंपोनेंट्स थे हमारे that were कि we will do population based, we will do sorry. So we will do population based screening for hypertension, for BP, blood pressure, diabetes, oral cancer, breast cancers and cervical cancers, and and cervical cancers uh, and cervical cancers. एंड देन एनसीडी क्लिनिक्स पे फोकस रहा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। प्लस इसमें हमारा जो फोकस था वो ये था कि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो और जो हमारी प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी हो रही है वो भी रिड्यूस हो जाए। सेकंड, इसी में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लॉन्च किया गया बाद में, विच इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो हमारा जो पहला वाला प्रोग्राम था NPCDCS, उसी को रीनेम करके और एक्सपैंड करके NCD में लॉन्च किया गया। थर्ड जो स्टेप है, गवर्नमेंट ने जो मेजर स्टेप लिया, डेट इज आयुष्मान भारत जो स्कीम लेके आए 2018 में। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है वो लेके आए। इसमें जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और हमारे सब सेंटर्स थे उनको अपग्रेड किया गया टू हेल्थ एंड wellness centers, screening and management of the non-communicable diseases at primary level हुआ। साथ ही साथ फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स पर फोकस किया गया। इसी का एक कंपोनेंट आयुष्मान भारत का था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो इसमें जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन है उसको कवर किया गया, फॉर एग्जांपल फॉर कैंसर एंड कार्डियक सर्जरी, और इसमें 5 लाख पर फैमिली एंड पर ईयर वाज द लिमिट। फोर्थ इज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट लॉन्च इन 2017, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को 25% रिड्यूस करेंगे बाय 2025, और हमारी गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग को हम बढ़ाएंगे और अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम को भी हम जो है अपग्रेड करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। फिफ्थ जो स्टेप है दैट इज दी टोबैको कंट्रोल मेजर्स। फॉर एग्जांपल हमारा सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है, जिसको COTPA बोलते हैं। एंड इसमें जो COTPA में जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उसमें स्मोकिंग हैज बीन बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग्स देना कंपलसरी है, एडवर्टाइजिंग पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद टोबैको कंट्रोल करने के लिए नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP को भी लॉन्च किया गया 2007 एंड 8 में।
फिर हमारे लाइफस्टाइल कैंपेन्स हैं काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल फिट इंडिया मूवमेंट जो कि फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, और ईट राइट मूवमेंट जो कि हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करता है। फिर सॉल्ट, शुगर एंड ट्रांसफैट रेगुलेशंस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जो FSSAI रेगुलेशंस हैं, वो इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट को एलिमिनेट करता है। साथ ही साथ हमने GST रिफॉर्म्स किए हैं, जो हाई शुगर प्रोडक्ट्स हैं उस पर सिन टैक्स हमने लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल सिन टैक्स, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स को 40% स्लैब पे रखा हुआ है। सो उन पे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं ताकि एक डेटरेंट की तरह एक्ट करे। नेक्स्ट, what could be the way forward to control the non-communicable diseases in India? So इसमें first one is we have to increase our public health expenditure. जो हमारा प्रेजेंटली जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है that is around 2 to 2.5% ऑफ GDP टुवर्ड्स हेल्थ, तो उसे हमें इंक्रीज करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज में ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। सेकंड, हमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए स्क्रीनिंग में। इससे एक तो स्केलेबिलिटी बढ़ेगी और एक अर्ली डायग्नोसिस हो पाएगा। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके डायबिटीज को अर्ली डायग्नोस किया जाता है स्क्रीनिंग करके, तो उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं। फिर जो हमारे डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा NCD डिजिटल पोर्टल है, हमारा आयुष्मान भारत का जो हेल्थ अकाउंट है, तो उससे हम अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी हिस्ट्रीज को ट्रैक कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर पर को फोकस कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें हेल्थ एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा स्कूल्स में, उनके करिकुलम में ऐड करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अर्बन प्लानिंग हमें इस तरीके से करनी होगी जो फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करे। फॉर एग्जांपल हमें साइकिलिंग लेन्स और पार्क्स वगैरह सब अर्बन प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करने होंगे ताकि प्रमोशन मिले फिजिकल एक्टिविटी को। नेक्स्ट, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग को और एक्सपैंड और एनहांस करने की जरूरत है, और साथ ही साथ इन सर्विसेज को कम्युनिटीज के पास पहुंचाने की जरूरत है ताकि लोग बढ़ चढ़ करके आए और स्क्रीनिंग करवाएं। नेक्स्ट इज इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स हमें लेके आने पड़ेंगे, जैसे हम सिंटैक्स वगैरह लगा ही रहे हैं, और इनोवेटिव सोशल इंश्योरेंस मैकेनिज्म्स लेके आने पड़ेंगे ताकि हमारा हम एक फंडिंग जो है वो मिल पाए हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए। इसमें क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन भी हमें काफी अच्छा रखना पड़ेगा। जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, सबको जो है सही से कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। NGOs की हम हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं हमारे, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन सब की हेल्प लेकर के हम स्क्रीनिंग प्रोसेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स को भी हमें टारगेट करना है, साथ ही साथ जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है जिसकी वजह से लोगों को जो है सही न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता, या उनका लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस होता है, उन सब सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। कंक्लूजन जो हमें लिखना है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर, तो उसमें जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो हम इम्पैक्ट प्लस सोल्यूशन अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट बताएंगे कि NCDs का क्या इम्पैक्ट है, और फिर हम एक सोल्यूशन की ओर बताएंगे कि हमारा क्या सोल्यूशन रहना चाहिए। तो इससे हमें कंक्लूजन फ्रेम करेंगे। तो इम्पैक्ट में हम बता सकते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, दे आर द लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड, एंड जो ग्रोइंग बर्डन हमारा जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ को नहीं अफेक्ट करेगा, बट कहीं ना कहीं ये सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रेन प्रोवाइड करेगा फैमिलीज के ऊपर भी, कम्युनिटी के ऊपर भी, कंट्री के ऊपर भी, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी, तो वो उसका इफेक्ट है। सोल्यूशन हम ये बताएंगे कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी, जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन,
क्या क्या टूल्स हमें यूज करने हैं या स्टेप्स हमें लेने होंगे, उसमें स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन करेंगे, अर्ली डिटेक्शन या अपना हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये सब करेंगे। और ये सब करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि हम जो हमारा एनसीडी एपिडेमिक जो इंडिया में बढ़ रहा है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।